आज हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मेमोराइज करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो it will help you in the form of summary, and you will be able to solve objective question which may be related to option based or 1 marks, or you can say that is the fill up the blanks, sometimes matching may be। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हमने एक प्रकार से समरी लेने का प्रयास किया है। ऐसे तो समरी लेने के लिए कम से कम 50 से 60 पॉइंट्स हमको सर्च आउट करना चाहिए था, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा उन सारे पॉइंट्स को मैंने लिया है। जो फर्स्ट है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वाज, फिल अप द ब्लैंक्स, दैट इज द stagnant and backward, that will be the answer. So anybody can ask you what was the condition of Indian economy on the eve of independence, so your answer will be stagnant and backward. In the year 1947 India got the freedom, everybody knows. So at that time the rate of per capita income was approximately the growth rate of per capita income at that time was only 0.5%. So think yourself, 0.5%। आप समझ रहे हैं कि 1 रुपये का 50 पैसा पूरे साल में लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ता था। सो 0.5% ओनली। नेक्स्ट, हु एस्टिमेटेड per capita income and GDP during the British rule? So your answer will be Dr. V.K.R.V. Rao. So he was an economist. So first of all, he calculated the per capita income when our country was the colony of Great Britain. Next, which industry suffered a major setback due to partition of India? So here the answer will be the jute. But if the question comes, which kind of industry suffered a major setback due to partition of India? So your answer will be jute and textile industry. Basically jute industries were located, or at present also located, in Calcutta, and textile industry is located in the Mumbai and Ahmedabad. So when our country was divided into two parts, one was the Pakistan and other was the India, तो जितने भी फर्टाइल लैंड्स थे, मोस्ट ऑफ द फर्टाइल लैंड वेंट इन द फेवर ऑफ पाकिस्तान. एज ए रिजल्ट, these industries faced the problem of raw materials, and that's why here the question is which industry suffered a major setback due to partition of India. Next question is, which industry suffered a major setback during the British rule? Okay, so listen, here there is a minute difference. So here that is the partition of India, and second is the during the British rule. So during the British rule, all the handicraft industries were totally suffered, and you can say it was destroyed by the Britishers. Next question, which year is described as the real of Great Divide? So that is 1921. So what is this real of Great Divide है क्या बेटा? तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1921 के पहले और 21 के बाद डेमोग्राफिक कंडीशंस जो कंट्री का था उसमें ड्रास्टिक चेंज आया,
इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट डिवाइड ईयर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज रेलवे ऑफ कोर्स। जो रेलवे जो था बेटा वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक प्रकार का रिवोल्यूशन क्रिएट किया। पीपल कैन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वी कैन शेयर आवर व्यू कल्चर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट्स, even the raw material can be brought from the different parts of the country, and it helped in the industrial growth. The next, that is the opening of Suez Canal served as a direct route for ship operating between India and Britain. ये जो हमारा जो बेटा आज भी है क्या स्विस कैनाल, वो बहुत पहले नहीं था, तो जिसके कारण इंडिया को एक्सपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था, एक्सपेंडिचर बहुत होता था, क्योंकि वो अफ्रीका के निचले हिस्से से वो क्रॉस करता था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम था। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किसने किया? जब एक कैनाल बनाया गया जिसको हम लोग स्विस कैनाल के नाम से जानते हैं, तो हमारा डिस्टेंस जो है काफ़ी बच गया, हमारा एक्सपेंसेस कम हो गया। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग पाते हैं कि ये जो हमारा था वो तेज़ी के साथ ग्रो कर रहा था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ओपनिंग ऑफ द स्वेज कैनाल इन द ईयर 1969 रिड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन। जो कि मैंने तुमको बताया ही कि स्वेज कैनाल के डेवलप होने से हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट गया, टाइम का भी सेविंग होने लग गया। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तुमको ये जानना चाहिए कि स्विस कैनाल किस वर्ष स्टार्ट हुआ था। तो ये हमारा था 1869। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया इन द ईयर 1850। द मेन रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज लैंड टेनर सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे ऑप्शन तुमको मिलेंगे कि हमारा जो एग्रीकल्चर जो था वो स्टैगनेंट हो चुका था, स्थिर हो चुका था, उसकी विकास की गति काफ़ी लो थी। तो उसका मेन रीज़न क्या था? सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था? तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था लैंड टेनर सिस्टम। इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स थे जो हमारे इकोनॉमी को स्टैगनेंट करने में मदद कर रहे थे। अब हम लोग देखते हैं लिटरेसी रेट का क्या हालत था। सो द लिटरेसी रेट एंड द फीमेल literacy rate of India at the time of independence was 16% and 7%. कुछ बुक में तुमको 6% भी मिलेगा फीमेल लिटरेसी रेट, बट इंडिया का ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना था? 16%। तो तुम समझ सकते हो कि हमारे देश में शिक्षा नाम की एक प्रकार से चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि 100 व्यक्ति में से 100 व्यक्ति सिर्फ लिखना और पढ़ना जानते थे। एग्रीकल्चर वॉज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है बेटा, कि सिर्फ एग्रीकल्चर ही था जहाँ से हम अपने लाइफ को सरवाइव कर सकते थे, और हम अपने आप को इंगेज कर सकते थे, इनकम जनरेट कर सकते थे। So in the year 1881, first official census was conducted in India. This is the most important question. सबसे पहले हम लोगों के देश में बेटा ऑफिशियली सेंसस कब हुआ था, मतलब जनगणना कब हुई थी, लोगों को काउंटिंग कब किया गया था? तो ये हमारा ईयर था 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोटिव ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड deindustrialization was how to get raw material from India at cheap rate.
जो अभी हम लोग पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि ब्रिटिशर्स जो थे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए थे। तो पहला क्वेश्चन ये मन में आता है कि वो डिस्ट्रॉय कर क्यों किए, जबकि वो इंडिया में ही शासन कर रहे थे। तो इसलिए कि उस समय बेटा ग्रेट ब्रिटेन में क्या हो चुका था, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। मतलब इंडस्ट्री से वहाँ इंडस्ट्री सेटअप हो चुके थे, नए नए मशीन्स का यूटिलाइजेशन हो रहा था, प्रोडक्शन मास में हो रहा था, बड़े पैमाने पर हो रहा था, लेकिन उस रेशियो में उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम इंडस्ट्रीज़ को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हैंडीक्राफ्ट को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल का कोई यूज नहीं होगा और वो आसानी से उस रॉ मटेरियल को अपने कंट्री में लेकर चले जाएंगे, अर्थात इंपोर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री लेड टू लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, हम लोग अपने नेकेड आई से भी देखते हैं कि कोई भी जब कंपनी बंद हो जाती है तो वहाँ काम करने वाले लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है, उनका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाता है और साथ ही साथ मतलब उनका कंडीशन काफ़ी मिजरेबल हो जाता है। तो सेम थिंग हुआ था बेटा उस समय जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारा क्या हो गया था, कोलैप्स कर रहा था। तो अनएम्प्लॉयमेंट था और ये क्या किया, इनकरेज कर दिया इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो अनएम्प्लॉयमेंट तो साथ ही में अनएम्प्लॉयमेंट तो था ही, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ हमने देखा कि जो इंडस्ट्रीज हमारे सेटअप ऑलरेडी थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, वो बर्बाद हो गए। अब वो रॉ मटेरियल को यूज नहीं कर रहे थे, ना ही कुछ फाइनल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे थे। तो रॉ मटेरियल्स कहाँ चला जाता था, ग्रेट ब्रिटेन में, और वहाँ से फाइनल गुड्स बनकर इंडिया आ जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मोर्टेलिटी रेट इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ एन इकोनॉमी। तो खाली मोर्टेलिटी रेट ही नहीं है बेटा, डेथ रेट, बर्थ रेट है, लिटरेसी रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम मान सकते हैं मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट जो होता है ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल को डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट है बेटा, हाई वैल्यू ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट्स सोशल बैकवर्डनेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। सो ये तो सही है कि ब्रिटिश रूल को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा इंडिकेटर है। लेकिन आज के डेट में भी उन सभी क्षेत्रों में जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो जन्म लेते हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाते हैं, सिंगल पहला बर्थडे भी नहीं मनाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा इन्फेंट, जिनका 1 साल भी नहीं हुआ है, और अगर वो मर रहे हैं उस एरिया में, तो तुम समझ लो कि वहाँ के लोग जो हैं टोटली बैकवर्ड है। दे डू नॉट नो हाउ टू नॉरिश देयर चिल्ड्रेन, they have no any medical facilities, even we can say they are illiterate. So that's why these points comes under the demographic profile. द एक्सपोर्ट सरप्लस, अब देखो बेटा नाम ही एक्सपोर्ट सरप्लस, मतलब जो एक्सपोर्ट होता था उसका संख्या मतलब मात्रा जो है बढ़ गया है। जनरेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वाज यूज्ड टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस to the British government and to meet expenses on war. It was also used to import invisible items. तो अब 3 चीज़ यहाँ पर लिया गया है कि जो भी हम लोग रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे और उससे जो पैसे हम लोगों को मिल रहे थे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सरप्लस मनी आ रहा था हम लोगों के पास, तो उस पैसे को कभी भी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर खर्च नहीं किया गया, बल्कि अंग्रेज़ अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक्सपेंस किए। वो अपना जो उनका रिक्वायरमेंट था, और लड़ाइयों में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जो हो रही थी उस समय, फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार, तो उस वर्ल्ड वार में उन्होंने खर्च किया। इस प्रकार से हम पाते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर ब्रिटिश का थोड़ा भी ध्यान नहीं था। एक टर्म और यहाँ पर मैंने यूज किया है, इट वाज आल्सो
used to import invisible item. So invisible items are those items which can't be measured in terms of unit. So all kind of services is a part of invisible items such as shipping, insurance, banking, etc. Next point, the triangular relationship among the government. अब देखो बेटा, यहाँ पर एक क्या वर्ड है, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, मतलब तीन लोग इसमें जुड़े हुए हैं. कौन का? ओनर ऑफ द सॉइल, टीलर ऑफ द सॉइल एंड गवर्नमेंट. तो तीन लोग हो गए. गवर्नमेंट, खेत का मालिक, खेत जोतने वाला. तो जहाँ पर ट्रायंगुलर रिलेशनशिप क्रिएट हुआ था उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम. The growth of aggregate real output was less than 2% and the growth of per capita output was just 0.5% during the first half of the 20th century in India. तो अभी हम लोग पढ़े थे बेटा कि हमारे देश का जो ग्रोथ रेट था वो 0.5, यहाँ पर हमने 0.5% दे दिया है. और पूरे देश का अगर हम लोग करें कि टोटल किस रेट से प्रोडक्शन हो रहा था, तो हम लोगों को क्या मिलता है बेटा, ओनली फॉर 2% के हिसाब से. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बेटा. इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वेयर एस्टिमेटेड बाय सो मेनी पीपल. ठीक है, पर कैपिटा इनकम सबसे पहले तो मैंने तुमको बता दिया था कि डॉक्टर V.K.R.V. रॉ जो थे, लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोगों ने डिटरमाइन किया. ये सब जो है इकोनॉमिस्ट का नाम है. ऐसे तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है बेटा दादा भाई नौरोजी को, क्योंकि उन्होंने ही फर्स्ट टाइम कहा था कि हमारे देश से वेल्थ ड्रेन हो रहा है. मतलब हमारे देश से जितनी संपत्तियां नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारे के सारे बाहर मतलब इंडिया से लेकर दूसरे देशों में भेजा जा रहा है. तो उसी में था बेटा कुछ इकोनॉमिस्ट जो ब्रिटिशर्स भी थे. उसमें था बेटा W. डिगबाई, उसके बाद फिंडले, सिरास, दादा भाई नौरोजी, KT शाह, डॉक्टर V.K.R.V. रॉ, R.C. देसाई एंड सो ऑन. Next point is that after the year 1921, India entered the second phase of demographic transitions. तो अभी इसके पहले हम लोग एक और पॉइंट पढ़े थे कि इंडिया इज़ कंसिडर्ड एज ए ग्रेट डिवाइड ईयर. तो 1921 को क्यों हम लोग डिवाइड ईयर मानते हैं? क्योंकि 1921 से सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन स्टार्ट होता है. नेक्स्ट इज द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस मशीन. एवरीबडी नोज machines, tools which are used for producing consumer goods. और तुम इसको सिंपल वर्ड में याद कर सकते हो कि ये मशीन और टूल यूज किए जाते हैं अदर कंज्यूमर गुड्स के प्रोडक्शन के लिए. नेक्स्ट इज द हम लोग पहले ऊपर भी लिख भी चुके हैं, बता भी चुके हैं कि ट्रायंगुलर जो होता है वो हमेशा जमींदारी होता है. ये रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दैट. नेक्स्ट इज the partition of the country created serious problem of shortage of raw material for jute mills and textile mills and resulted in food crisis in the economy. ठीक है बेटा, कि जैसे ही इंडिया का पार्टीशन हुआ तो जूट तो बैडली अफेक्टेड हुआ था, लेकिन जूट के अलावा मैंने पहले भी बताया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ भी अफेक्टेड हुए थे और इन सब के कारण फूड क्राइसिस स्टार्ट हो गया था. फूड की कमी शुरू हो गई थी अपने इकोनॉमी में. द इकोनॉमिक ड्रेन एम्प्लॉयड ऑल दोज पेमेंट विच वेयर मेड टू इंग्लैंड फॉर विच इंडियन रिसीव्ड नथिंग इन रिटर्न. देखो बेटा, अक्सर आता है ये चीज़, हम लोग बोलते हैं ना वेल्थ ड्रेन, उसका माइंड ड्रेन, इकोनॉमिक ड्रेन. तो इस एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है यहाँ पर कि एम्प्लॉयड ऑल दोज पेमेंट विच वेयर मेड टू इंग्लैंड. हम लोग जो भी पेमेंट किए थे किसको बेटा? इंग्लैंड को, लेकिन उसके बदले में हम लोगों को कुछ भी रिटर्न में नहीं मिला. नेक्स्ट है बेटा, द मोटिव बिहाइंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज टू फोल्ड. पहला, टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट ए चीपर रेट, एंड सेकेंड
to sell British manufactured goods in Indian market at higher prices. तो ये तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि why the Britishers what was the motive of Britishers behind the de-industrialization. तो उनका दो ही एक्चुअली बिहाइंड द इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पर लिखा गया होना चाहिए था बेटा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब हो गया कि पूरे इंडस्ट्री को समाप्त करो. तो समाप्त करने के पीछे उनका दो ही मेन रीज़न था. पहला रीज़न था कि सस्ते दर पर रॉ मटेरियल को इंग्लैंड भेजा जाए और वहाँ पर जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर्ड होते हैं फाइनल उसको इंडिया में इंडिया को मार्केट के रूप में यूज करके यहाँ सेल किया जाए. तो दोनों ही तरफ से उनको डबल इनकम का दोनों ही तरफ से उनको फ़ायदा हो रहा था. डबल इनकम जनरेट करना चाहते थे. सो लो लिटरेसी रेट इज़ द सोशल इंडिकेटर्स कंट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग of India's demographic profile during the colonial period. Okay, so not only the infant mortality rate, but low literacy rate is the main social indicators which contributes to the worsening of India's demographic profile during the colonial period. So in this way I have just taken the 30 points, but from these books you may collect lots of points which will help you to explain the answer, long answer that is known as the name of the chapter is the Indian economy on the eve of independence. तो इस प्रकार से इंडियन इकोनॉमिक्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे बड़े उसको तुम आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया और तुम अपने से भी कुछ पॉइंट्स बना लो. ओके, थैंक यू.